وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے۔ یہ نعت پاک تو یاد ہو گئی ہوگی نا، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہدایت والا نور، ارے کہو نا کوئی نور۔ وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، صلی اللہ ہو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ مکرمہ میں، کہو بے شک 10 سال مکہ، یہ سننے جیسی بات، 10 سال مکہ مکرمہ میں، اور مکہ کے جو بڑے بڑے غیر ہیں وہ پلاننگ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پلاننگ کر رہے ہیں، اور 3 قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے بھائی۔ مکہ کی گلی گلی میں مکہ کے چودھریوں نے اور مکہ کے رئیسوں نے اور کفار مکہ نے گلی گلی میں پلاننگ کی۔ کیا اب میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں، کوئی بھی پلاننگ کرے وہ کرتا ہے زمین پر، میرا خدا کرتا ہے آسمان پر، صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ مکہ کی گلی گلی میں پلاننگ ہو رہی۔ کیا پلاننگ ہو رہی؟ ارے کوئی کہتا یہ محمد نے حد کر دی، قتل کر ڈالو، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا محمد نے حد کر دی، قید خانے میں بند کر ڈالو، نعوذ باللہ۔ اور کوئی کہتا حد کر دی، مکہ سے نکالو۔ کتنی پلاننگ ہو رہی؟ اور یہ تینوں پلاننگ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، پارہ نمبر 9 میں، پارہ نمبر قرآن میں لکھی ہوئی، تینوں باتیں قرآن کریم میں لکھی ہوئی، لیکن اللہ نے جو منہ توڑ جواب دیا، کہو سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن کریم میں کیا لکھا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے مکہ والوں کو دیکھو، زمینوں پر بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یا تو محمد کو قتل کر ڈالیں گے، یا محمد کو قید خانے میں بند کریں گے، یا تو محمد کو مکے سے نکالیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے یہ پلاننگ کریں گے زمین پر، اور میں پلاننگ کروں گا آسمان پر، تیری پلاننگ فیل ہوگی۔ اللہ فرماتا میری پلاننگ تو پاس ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر! اس لیے میں تو کہتا ہوں کوئی بھی پلاننگ کرے، لیکن محمدی کے خلاف کوئی پلاننگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں سب محمدی بنیں گے انشاءاللہ، کہو محمدی بنیں گے انشاءاللہ۔ اب پلاننگ ہو رہی ہے قتل کر ڈالو، پلاننگ ہوتی قید خانے میں ڈالو، پلاننگ ہوتی کہ مکہ سے نکالو، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، کوئی یہ پلاننگ کرتا، کوئی اس ہوٹلے پر بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتا، کوئی وہاں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چوکھٹ کے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ یہ مکہ والے، کوئی مجھ کو قتل کرنا چاہتا، کوئی مجھ کو نکالنا چاہتا، کوئی مجھ کو قید خانے میں بند کرنا چاہتا، اللہ تو بتا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مکے سے باہر آ جاؤ، مکے سے۔ کہا اللہ یہ تو یہی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی پلاننگ کو کوئی سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہو اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میں بھی چاہتا ہوں مکہ کو چھوڑ دو، مکہ کو الوداع کہہ دو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ میں مکے کو چھوڑوں گا تو کعبہ بھی چھوٹ جائے گا، مقام ابراہیم بھی چھوٹ جائے گا، صفا مروہ کی پہاڑی بھی چھوٹ جائے گی، زمزم کا کنواں بھی چھوٹ جائے گا، یہاں کی نمازیں بھی چھوٹ جائے گی۔ اے اللہ تو مجھ سے مکہ کیوں چھڑاتا؟ اللہ نے فرمایا یہ چاہتے کہ مکہ چھوڑ دے، میں بھی چاہتا مکہ چھوڑ دے اور یثرب چلا جا۔ یہاں سے 500-600 کلومیٹر دور کہاں چلا جا؟ یثرب چلا۔ یثرب کے معنی آتے ہیں جہاں بیماری اترے، جہاں نحوست اترے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں بھی چاہتا ہوں میرا محبوب چھوڑ دے، مکہ چھوڑ دے، کعبہ چھوڑ دے، زمزم کا کنواں چھوڑ دے، مقام ابراہیم چھوڑ دے، یہ صفا مروہ پہاڑی چھوڑ دے اور یثرب چلا جا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر روئے، کہا اللہ میں یثرب جاؤ، وہ تو بیماری کی جگہ ہے، وہ نحوست کی جگہ ہے، اللہ تو کہے گا میں چلا جاؤں گا، لیکن کوئی میرے ساتھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ جب سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے کرتے مکہ سے نکلتے ہیں اور جب یثرب آتا ہے تو یہ لوگ لانگ کٹ لیتے ہیں، لیکن اس زمین پر نہیں جاتے، بیماری آئے گی، نحوست آئے گی۔ کوئی بھی مکہ والا یہ شارٹ کٹ سے نہیں جاتا، وہ لانگ کٹ سے جاتے، لیکن اس جگہ سے نہیں جاتے۔ اور اللہ تو کہتا ہے وہی جاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے
महबूब वहीं जा। कहां पर? अरे सब बोलो कहां पर? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह तेरा हुक्म है मैं चला जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं आएगा, इसलिए कि बीमारी की जगह, नहूसत की जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब, तवज्जो देना, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आगे बढ़ जा, यस्रिब चला जा, तेरे कदम बहुत मुबारक है। कहो सल्लल्लाहु। सुनना अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया जाओ जाओ यस्रिब जाओ मेरे महबूब, मेरे राज दुलारे जाओ, यस्रिब जाओ, वो नहूसत की जगह है, वो बीमारी की जगह है, लेकिन तेरा कदम बहुत मुबारक है। अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत की कसम मेरा नबी एक बार तू कदम रखेगा उस जमीन का नाम भी बदल दूंगा, शान भी बदल दूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का नाम। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आगे बढ़ तो सही, आगे बढ़ तो सही, तेरा कदम कोई मामूली कदम नहीं है, वो कदम है जिसको फरिश्तों ने भी चूमा है। अपना कदम आगे बढ़ा, यस्रिब में तेरा कदम जाएगा। अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम नाम भी बदल दूंगा, जमीन की शान भी बदल दूंगा। हमारे नबी ने कदम मुबारक रखा, अल्लाह ने फरमाया यस्रिब नहीं, इसका नाम मदीना होगा, इसका नाम मुनव्वरा होगा, इसका नाम ताबा होगा, इसका नाम तय्यबा होगा। और अल्लाह ने फरमाया जो इस जमीन पर मरेगा, जो इस जमीन पर मरेगा सबसे पहले मेरा नबी उसी की सिफारिश करेगा। नारे तकबीर, मोहम्मद का नाम। मेरे दोस्तों ये हिजरत अल्लाह ने कह दिया तुम्हारा मुबारक कदम जाएगा, जमीन का नाम भी बदलेगा और जमीन की शान भी, अरे बोलो ना, जमीन का नाम भी बदलेगा, जमीन की शान भी। लेकिन हमारे नबी ने फिर फरमाया क्या? अल्लाह वो सब बात है, वो सब बात है, मेरा कदम जाएगा, अल्लाह तेरे फजलो करम से नाम भी बदल जाएगा, शान भी बदल जाएगी, लेकिन मक्का, काबा, मकाम इब्राहिम, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अभी तुझसे मक्का टेम्परवरी छुड़ा रहा हूं। कैसे छुड़ा रहा हूं? ए मेरे नबी मेरे हुक्म से मक्के को छोड़ दे, एक जमाना आएगा और करीब जमाना आएगा मक्का तेरा गुलाम होगा और तू मक्के का बादशाह होगा। नारे तकबीर। और हुआ कि नहीं हुआ? एक जमाना आया, ओहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों सबको माफ कर दो, मेरे दोस्तों माफ कर दो, कहो हमने सबको माफ कर दिया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना तेरे बारे में वो ऐसा बोला, वो वैसा बोला। मैंने कहा मेरे नबी की शान ये थी, तू कैसा भी बोला मैंने कयामत तक माफ कर दिया। हमको बोलने की जरूरत, हम तो माफ करने वाले, इसलिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए, अल्लाह अकबर, कैसी शान के साथ आए, कैसी शान के साथ आए, फातिहाना शान में, एक जीतने वाले बादशाह की शान में हमारे नबी मक्का में आए और पूरा मक्का थर थर कांपता था, इसलिए कि मक्के में वो भी था जिसने नबी के चेहरे पर थूका था, मक्के में वो भी था जिसने नबी के लिए कांटे बिछाए थे, मक्के में वो भी था जिसने हमारे नबी के पांव पर पत्थर मारे थे, मक्के में वो भी था जिसने हमारे नबी के गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी थी, मक्के में वो भी था जिसने हमारे नबी की पीठ पर ऊंट का कल्ला रखा था। लेकिन हमारे नबी मक्के में आए और पहला जुमला फरमाया अंतुम तुलका, जाओ मैंने आज सबको माफ कर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का नाम। मेरे दोस्तों कुरान करीम ने कहा हमारे नबी वापस मक्का आए कि नहीं आए? बोलो आए कि नहीं आए? अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। अल्लाह देखो कैसे खुशखबरी पर खुशखबरी दे रहा, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता? इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब मक्का चला जा, मक्का का बादशाह भी बन गया, जमीन में बादशाह बन गया और आसमानों पर तू मासूम बन गया। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। जमीन पर तू बादशाह है, मक्का बन गया, आसमान पर तू मासूम है, जहां बन गया। और अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब बढ़ता जा, मदद तो मैं ही तेरी करता जाऊंगा।
چلو میرے دوستو، اب ہمارے نبی مدینہ گئے، قدم مبارک رکھا، نام بھی بدل گیا۔ آج کوئی یثرب بولتا ہے؟ بلکہ میں نے یثرب بولا تو آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی جگہ ہجرت کرنے گئے۔ آج کوئی یثرب نہیں جانتا، سب لوگ اس کا نام رکھتے مدینہ۔ اب میرے دوستو ذرا ایمان سے کہو مدینہ کی زمین اچھی کہ نہیں؟ ارے بولو نا سب ساتھ میں، اور ہاتھ اوپر اٹھا کے بولو مدینہ کی زمین اچھی کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ وہاں کی مٹی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدینے کی زمین اتنی پیاری اتنی پیاری اتنی پیاری۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سب سننا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں گزر رہے، گلی سے گزر رہے، حضرت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، سارے صحابہ کوئی دائیں ہیں کوئی بائیں ہیں کوئی پیچھے ہے، اور ہمارے نبی بیچوں بیچ گزر رہے۔ اچانک مدینے میں ہوا چلی، بارش آنے لگی، ہوا چلنے لگی اور مدینے کا غبار اڑنے لگا۔ تو سارے صحابہ نے کیا کیا؟ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، سارے صحابہ نے اپنی اپنی چادر کو بند کر دیا۔ میں اپنی چادر کو، میں چادر جو اڑی تھی نا اس کو لپیٹ لیا تاکہ پانی بھی نہ لگے، مدینے کا غبار بھی نہ لگے، مدینے کی ہوا بھی نہ لگے۔ ارے صحابہ نے اپنی چادروں کو لپیٹا اور ہمارے نبی نے چادر مبارک کو کھول دیا۔ میں ہمارے نبی نے چادر مبارک کو کھولا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، بارش ہو رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے اور ہوا چل رہی، چادر لپیٹ لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، میں نے کھولا، تم بھی چادر کھول دو، تم بھی چادر کھولو۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بھائی چادر کھولو۔ سارے صحابہ نے چادر کھولی، لیکن سب کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کون سی بات ہے کہ بارش ہو رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے، ہوا چل رہی اور چادر کھولے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کسی کو مدینے کا پانی مل جائے، اگر کسی کو مدینے کی ہوا مل جائے، اگر کسی کو مدینے کا غبار مل جائے اور آٹومیٹک مل جائے، قدرتی طور پر مل جائے، اللہ اس بدن پر جہنم تو دور جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور میں کہتا ہوں میرے دوستو یہ مدینے کا کمال نہیں، کمال مدینے والے کا ہے۔ ارے سب بولو مدینے کا کمال نہیں، مدینہ والے کا کمال ہے کہ تیرا قدم کیا پڑا کہ ہوا بھی مبارک ہو گئی، تیرا قدم کیا پڑا کہ مدینے کی مٹی کھا کے شفا بن گئی، تیرا قدم کیا مبارک پڑا کہ مدینے کا پورا ماحول ہی بدل گیا۔ آج سب تمنا کرتے اللہ موت آوے تو مدینے میں آوے، کہو نا آمین۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، ہجرت کی بات بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وصال پر 21 مارچ۔ ارے ابھی تو ہجرت کا بہت باقی ہے، ابھی تو وہ اذان سننے والا ہے پٹھان بھائی۔ بھائی ہجرت کی بات بتاؤں بہت پیاری ہے۔ یہ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے نکلے، ارے آپ سب کو معلوم ہے مکے سے نکلے، اور ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نکلے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی سے نکلے۔ ارے بولو کیسے نکلے؟ خاموشی سے نکلے، اپنے بستر پر علی کو سلا دیا، اوہ سبحان اللہ، اپنے بستر پر مولا علی، حضرت علی مرتضیٰ، ان کو ملا صفدر سننا بہت پیاری بات ہے، اپنے بستر پر کن کو سلایا؟ حضرت، اور حضرت علی آرام سے سو گئے، جوان تھے ماشاءاللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور وہ مکہ کے سارے کافر کیا سمجھتے؟ محمد سوئے ابھی اٹھیں گے، ہم جانے تھوڑی دیں گے، ہم ان کو مکہ نکلنے نہیں دیں گے، ہم تو یہیں پر قتل کر ڈالیں گے، ارے ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور بستر پر کون سو رہے؟ حضرت علی۔ جب صبح ہوئی اور حضرت علی نے چادر ہٹائی تو سب نے کہا اینا محمد، محمد کہاں؟ تم تو علی ہو۔ کہا میں علی ہوں۔ کہا محمد کہاں؟ کہا میرے کو کیا معلوم، کلا ادری مجھے نہیں معلوم۔ کہاں گئے؟ کہا گئے وہ تو جانے والے تھے ہجرت، گئے وہ تو کہا کہ تم نے ہم کو دھوکہ دیا۔ کہا اس میں کون سے دھوکے کی بات ہے؟ ارے دھوکے کی بات نہیں، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ آج علی کو نبی کا بستر نصیب ہو گیا۔ تو جتنے تھے نا کہنے لگے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ہم تمہارے آزو بازو گھومتے تھے، تمہیں ڈر نہیں لگا کوئی تیر مارے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا؟ کہا بالکل نہیں لگا، کہا بالکل نہیں لگا، اس سے اچھی تو کوئی رات ہی نہیں تھی۔ کہا کیوں ڈر نہیں لگا؟ علی تم ڈرتے نہیں؟ کہا ہاں، چادر سے دیکھتا تھا کوئی تلوار لے کے گھومتا ہے، کوئی چھری لے کر گھومتا ہے، کوئی پتھر لے کر، سب دیکھتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا اللہ کی قسم کوئی نہیں مارے گا۔ کہا کیسے معلوم تھا کوئی نہیں مارے گا؟ کہا میرے نبی جب گئے تو کہہ کے گئے تھے علی صبح اٹھنا، امانت پہنچانا اور مدینے آنا، جب تک علی کا پاؤں مدینہ نہیں پہنچے گا ملک الموت نہیں آئے گا، تو تم کہاں سے آؤ گے؟ نعرہ تکبیر، محمد کا دامن، علی کا دامن۔ حضرت علی کا یقین اور توکل تو دیکھو کیا فرمایا، کوئی نہیں مارے گا۔ میرے نبی نے فرمایا صبح ہوگی امانت ادا کرے گا اور اس کے بعد میں مدینہ آئے گا، جب تک علی کا قدم
आदम मदीने की जमीन को छूता नहीं, मलकुल मौत मेरी रूह को नहीं निकाल सकता, तो तुम मक्का वालों तुम क्या मेरी रूह को निकालोगे? मेरे दोस्तों अब तो पूरे मक्का में अफरा तफरी, चले गए मोहम्मद, चले गए, हमको पता भी नहीं चला। अबू जहल तो पूरा लाल लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल लाल पीला पीला हो गया और जोर से ऐलान किया। हाँ, काबे की चौखट पे खड़ा हो गया। कौन? अबू जहल, दुश्मन कट्टर, काबे की चौखट पर खड़ा हो गया और क्या ऐलान किया? मैयाती बि मोहम्मद हय्यन औ मय्यिता फलहु मिअतु कराइमिल इबिल। काबे की चौखट पर अबू जहल खड़ा हुआ और ऐलान किया, कोई भी मोहम्मद को लेकर आएगा, जिंदा लाए या मुर्दा लाए, मेरी तरफ से 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा। मेरी तरफ से कितने ऊंट? और एक ऊंट में समझता हूँ अरबी ऊंट आज के जमाने में नहीं तो भी 40-50 हजार का तो एक ऊंट होगा, तो कितने ऊंट मिलने वाले? क्या हो गया हिसाब? देखो कैसे हिसाब के लिए कैसे गहरी गहरी सोच मारते। वो मक्का में भी एक ऐलान हो गया। अरे सब लोग आपस में बात करें, अरे उसने ऐलान कर दिया, अबू जहल ने ऐलान कर दिया, कोई मोहम्मद को लेकर आवे, जिंदा लावे या मुर्दा लावे, 100 ऊंट, 100 ऊंट, 100 ऊंट, पूरे मक्का में ऐलान होता। मेरे दोस्तों सुनना, मक्का के करीब में गांव है, ये सुनने जैसी बात है। मक्का के करीब में गांव, और उस गांव का नाम है कुदैद। उस गांव का नाम क्या है? कुदैद। मक्का के करीब में आज भी एक गांव है, उसका नाम कुदैद। वहां एक बड़ा बहादुर रहता था जिसका नाम था सुराका। हदीस पाक में उसके बारे में लिखा, काना अजीम अल जुस्सा, यानी बदन के एतबार से लंबा चौड़ा था और उसको चप्पा चप्पा अरब का मालूम था। उसके कान में आवाज आई, वो तो ऐसे दोस्तों के साथ बैठा था, इधर उधर की बातें करता था, उसके कान में आवाज आई कि ऐलान हो गया कि जो मोहम्मद को जिंदा लावे या मुर्दा लावे 100 ऊंट मिलेंगे। अब ये सुराका लंबा चौड़ा लेकिन गरीब आदमी, गांव का रहने वाले और बिल्कुल अनपढ़, कहने लगे, चुपचाप दोस्तों में से उठे और घर में आए और कहा कि मोहम्मद को ही लाना है ना, और जिंदा लाना या मुर्दा लाना। लेकिन सुराका अपने आप को कहते, सुराका 100 ऊंट मिलेंगे, तेरी तो तकदीर ही बदल जाएगी। तू गरीब आदमी के घर के झोपड़े में भाई 100 ऊंट आ जावे, जहां एक ऊंट न समावे वहां 100 ऊंट ले। तो बस उन्होंने चुपचाप एक घोड़े को लिया और घोड़े के ऊपर बैठे, नंगी तलवार हाथ में ली और कहा, पैदा करने वाले की कसम, सुराका मक्के से मदीने का हर रास्ता मालूम, चप्पा चप्पा मालूम है, पहला सुराका होगा जो मोहम्मद का सुराग लगाएगा। और उसके बाद जो अपने घोड़े को दौड़ाया और था बड़ा माहिर, बड़ा तीरंदाज, बड़ा तलवारबाज और बहुत ही ज्यादा रास्तों को जानने वाला। बस उसने जो घोड़ा दौड़ाया, मेरे दोस्तों वो वक्त आया, सामने मोहम्मद और अबू बकर नजर आते। कहो सल्लल्लाहु। बस सुराका को तो जैसा मकसद मिल गया, कहा चलो 100 ऊंट का बंदोबस्त हो गया। 100 ऊंट का बंदोबस्त, लेकिन जब वो घोड़ा दौड़ाता था तो मिट्टी उड़ती थी। भाई घोड़ा दौड़ाएंगे रेगिस्तान में, मिट्टी उड़ती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर पड़ी, कांप गए, कहा अल्लाह के रसूल, सुराका वो कुदैद का जो बहादुर पहलवान है वो हमारे पीछे आ रहा है, वो सुराका आ रहा। हजरत अबू बकर का बदन कांपने लगा। हमारे नबी ने फरमाया, तखाफू या अबू बकर, डरते हो अबू बकर, डरते हो? हजरत अबू बकर आशिक थे, अल्लाह ऐसा आशिक हमको भी बनाए। फरमाया, अपने वास्ते नहीं आपके वास्ते डरता हूँ। क्या फरमाया? अपने वास्ते नहीं आपके वास्ते। क्यों? इसलिए कि अबू बकर मर जाएगा तो हजारों सिद्दीक मिलेंगे, लेकिन आप जैसा तो कोई नबी किसी को नसीब नहीं होगा, तो अपने वास्ते नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माई, अरे आने दे, सुराका को आने दे, सुराका आता है लेकिन उसका खुदा तो हमारे साथ है। अरे उसका पैदा करने वाला तो। हज़रत अबू बकर ने फिर कहा, अल्लाह के रसूल आ गया, बहुत करीब आया। अरे मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पीछे चेहरा घुमाया, आपकी नजर मुबारक जो लगी है, नजर मुबारक, आंख मुबारक जो सुराका की आंखों से मिली है, सिर्फ हमारे नबी ने देखा। सुराका के जो घोड़ा था उसके 2 पांव जमीन में धंस गए, वही जमीन में धंस गए। और सुराका समझ गया कि ये पांव धंस रहा है, अभी मैं भी धंसूंगा। कहा, ए मोहम्मद, मैं समझ गया, ये तेरी नजर है, ये तेरी नजर है, अब मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा। ऊपर वाले से कह दे मुझको बचा दे वे। मेरे दोस्तों रहमतुल्लिल आलमीन, हम होते तो कम वक्त आया क्यों? किसने भेजा? पहले नाम बता। हाँ है ना, नाम बता। हाँ, वो तो कहेगा मौलाना मेरे घर में जादू कहाँ है, किसने किया? मौलाना को नहीं मालूम तो तेरे को कहाँ से बताएगा? और फिर कहेगा भैया, मुझे कहेगा मौलाना तुमको समझ में नहीं आया होगा, वो हमारे बाजू में वो झीनबड़ी रहती है ना, वो करके जाती है, वो लीमू और मिर्चू डाल के जाती है। मैंने कहा वाह, 16 साल काम किया, मेरे को पता नहीं चला, तेरे को 16 मिनट में पता चल गया। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नजर मुबारक पीछे
पीछे घुमाई तो हुआ क्या, दो पांव जमीन में। हमारे नबी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह सुराका को नजात दे दे, अल्लाह सुराका को, तो ये आवाज बंद कर, अल्लाह सुराका को नजात। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह सुराका को नजात दे दे, सुराका, बस हमारे नबी का ये दुआ मांगना था, अल्लाह सुराका को नजात दे। दोनों पांव जमीन से बाहर। अब जैसे बाहर निकल आए तो सुराका तो लंबा चौड़ा, उसने देखा कि वाह, मैं तो वापस घोड़े के ऊपर बैठ गया और मेरे घोड़े के पांव दोनों निकल गए। सोचा वापस जाऊं, फिर ख्याल आया वापस जाऊंगा तो 100 ऊंट का क्या होगा, मैं 100 ऊंट का क्या होगा। फिर उसने वापस अपना घोड़ा दौड़ाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे नबी वो सुराका नियत बिगड़ गई, नियत बदल गई, वापस आता। हमारे नबी ने यूं नजर घुमाई, पहले 2 पांव ढसे थे, अब घोड़े के 4 पांव ढस गए जमीन में, और घोड़े के पांव ढसने लगे। सुराका ने कहा, मेरे नबी, सुराका ने कहा, मोहम्मद एक बार और माफ कर दो, एक बार और माफ कर दो, अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, अब पीछा नहीं करूंगा। हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह सुराका को नजात दे दे। 4 पांव वापस निकल आए। हजरत सुराका जो थे ना, वो घोड़े पर बैठे और क्या कहा, फरमाया, सुराका ने फरमाया, अब आपका पीछा नहीं करूंगा लेकिन आपसे मुलाकात तो करूंगा। क्या फरमाया, पीछा नहीं करूंगा, आपसे मुलाकात। हमारे नबी ने कहा जाओ। अब सुराका घोड़े पर आए, उतरे। अब सुनना, सुराका ने कहा, मैं समझ गया आप नबी हैं लेकिन मैं ईमान नहीं कबूल करूंगा। देखो कैसे सुराका क्या कहते हैं, मैं समझ गया कि आप नबी है लेकिन मैं ईमान कबूल, लेकिन मुझे मालूम है, वो सुराका कहते मुझे मालूम है आप नबी है, एक न एक दिन तुम्हारा सितारा चमकेगा, जिस दिन तुम्हारा सितारा चमकेगा। आज मैंने 100 ऊंटों को छोड़ दिया, सुराका कहते मैंने आज 100 ऊंटों को छोड़ दिया, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं करूंगा। अरे कोई तुम्हारा पीछा करता होगा, उसको करने भी नहीं दूंगा, मैं जाता हूं, मैं ईमान कबूल नहीं करता। लेकिन मोहम्मद एक वादा पूरा करना, जब आप मक्का में आओगे और बादशाह बनकर आओगे तो आज से लिखकर दे दो मुझे क्या क्या देने वाले हो, लिखकर दे दो क्या क्या। हमारे नबी ने चमड़े का टुकड़ा उठाया और लिखकर दे दिया, मैं ये जमीन दूंगा, ये जमीन दूंगा, ये जमीन दूंगा, और सुराका को दे दिया। सुराका जब जाने लगे, भाई सुराका ने ईमान कबूल किया, अरे बोलो ईमान कबूल किया नहीं। जब जाने लगे तो हमारे नबी ने एक जुमला कहा, सुराका ठहर जा। अब सुराका गांव के रहने वाले, कुजैत गांव के रहने वाले, अनपढ़ थे, लंबे चौड़े थे। हमारे नबी ने एक जुमला कहा, कहो सुभान अल्लाह, क्या फरमाया, कैफा बिका या सुराका इदा लबिस्ता सिवारई किसरा। हमारे नबी ने फरमाया, सुराका मैंने चमड़े के टुकड़े पर लिखा, वो तो तुझे मक्का में मिलेगा, लेकिन वो दिन भी आएगा ईरान का बादशाह किसरा, उसके सोने के कंगन अल्लाह तेरे हाथों में पहनाएगा। नारे तकबीर। अब सुनना, अब सुनने जैसी बात है। खैर हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, और सुराका ने अपना वादा निभाया, खुद ने भी पीछा नहीं किया और किसी को पीछा करने दिया भी नहीं, सबको भेज दिया। खैर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए और उसके बाद में वो वक्त आया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का आए, फातिहाना शक्ल में आए और मक्का के बादशाह बने, मक्का के शहंशाह बने। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए और हमारे नबी ने फरमाया, जाओ तुम सबको मैंने माफ कर दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम, जाओ अल्लाह तुमको माफ करेगा, मैंने सबको माफ किया। सुराका आए और दूर से चमड़े का टुकड़ा बता रहे हैं, दूर से चमड़े का टुकड़ा, बल्कि जमाना गुजर गया, चमड़े का टुकड़ा बता रहे। और सुराका कहते मैं सोचा कि अब तो बादशाह है, बोलेंगे मैं तुझे नहीं पहचानता, लेकिन कहते कि जैसे जैसे चमड़े का टुकड़ा मैंने बताया, हमारे नबी ने फरमाया, उमर देखो सुराका आया, मरहबा बिस सुराका, जल्दी सुराका को मेरे पास लेकर आओ, सुराका को मेरे पास लेकर आओ। सुराका भी कैसे, सुराका आए और कहा, देखो मक्का फतह हो गया, आप बादशाह बन गए, लेकिन मैं ईमान नहीं कबूल करूंगा। क्या फरमाया, मैं ईमान कबूल नहीं करूंगा, लेकिन जो वादा किया वो मुझको दे दो, भाई चमड़े का टुकड़ा आपने जो लिखा वो मुझको दे दो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चमड़े का टुकड़ा पढ़ा और क्या फरमाया, या सुराका हादा यौम बिर्रिन हादा यौम वफाइन, आज नेकी का दिन है, वादा पूरा करने का दिन है। सुराका जो लिखा, उमर 10 गुना सुराका को वो हवाले कर दिया जावे। नारे तकबीर। अब सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, सुराका के लिए उमर लिख दो, जितना मैंने कहा है वो सब का सब सुराका को दे दिया जाए, 10 गुना बना कर दिया जाए। और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का दिन है, वफादारी का दिन है। इतना हमारे नबी ने फरमाया कि सुराका ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, अब ईमान, अब तो सब मिल गया।
कहा इसीलिए तो ईमान कबूल किया, मैं देखना चाहता था अगर ये नबी है तो वादा करेगा जमीन पर और अल्लाह पूरा कराएगा आसमान पर। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। अब मेरे दोस्तों सुनना, हजरत सुराका, अब तो हजरत सुराका नाम भी प्यारा हो गया, हजरत। अब तो नबी पाक साहब की खिदमत में लग गए, ऐसी झाम तोड़ खिदमत की मेरे दोस्तों। वो दिन आया हमारे नबी का विसाल हुआ। कहो वो दिन आया हमारे नबी का, सुनना, विसाल हुआ। हजरत अबू बकर का जमाना, भाई सुनना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना। और सुराका बीमार पड़ गए, भाई सुराका, हजरत सुराका बीमार, और ऐसे बीमार ऐसे बिस्तर को पकड़ा कि अपने हाथ से ग्लास भी ना उठा सके, अपने हाथ से पानी भी ना पी सके, अपने हाथ से निवाला भी ना खा सके, अपने हाथ से खड़े भी ना हो सके, इतने बीमार। हजरत अबू बकर यादत को आए, बड़े बड़े साहबा यादत को आए। एक दिन वो आया, सारे रिश्तेदार आए और कहा सुराका तुम 2-4 दिन के मेहमान हो, वसीयतनामा लिख दो ताकि बाद में झगड़ा ना हो। मैं वसीयतनामा लिख दो इसलिए कि हमारे नबी ने आपको जमीनें दी है, जायदाद दी है, प्रॉपर्टी दी है और आपने बाद में कमाया है। आप वसीयतनामा लिख दो ताकि आपकी औलाद और आपके घर वाले आपस में झगड़ा ना करे। बस इतना कहना था, वसीयतनामा लिखो। तो हजरत सुराका ने कहा क्यों लिखूं? कहा आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, आपकी सांस बराबर नहीं आती, आप 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे, वसीयतनामा होगा तो झगड़ा नहीं होगा। हजरत सुराका ने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं मरूंगा। कोई बोल सकता है ऐसा? हम में से कोई बोल सकता है? मैं कितना भी चिल्लाऊं लेकिन नहीं बोलूं, मालूम नहीं कुर्सी पर ही मौत आ जाए। अरे आ जावे कि नहीं? हजरत सुराका ने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं मरूंगा। सारे घर वाले खड़े हो गए, सुराका कैसी बात करते हो, नहीं मरोगे? कहा नहीं मरूंगा। और खड़े हो गए, ताकत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कहा नहीं मरूंगा। कहा कैसे नहीं मरोगे? खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। कहा कुछ भी हो नहीं मरूंगा। मेरे नबी ने कहा था सुराका वो दिन आएगा, ईरान का बादशाह किसरा, उसके सोने के कंगन तेरे हाथ में आएंगे, जब तक कंगन नहीं आएंगे मलकुल मौत मेरे पास नहीं आएगा। हदीस पाक में लिखा मेरे दोस्तों, हजरत सुराका फिर ताकत वाले हो गए, चलना फिरना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शुरू हो गया। हजरत उमर का जमाना आया। कहो किसका जमाना आया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया। और एक वक्त वो आया, हजरत उमर ने ऐलान किया ईरान फतह हुआ और खजाना मदीना आया हुआ है। ईरान फतह हुआ, खजाना मदीना आया है। हजरत उमर ने ऐलान किया मदीने के गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार सबका हक लगता है, वो आ जाए और मेरे पास से हक वसूल करे। जब मदीने के सारे गुरबा जमा हुए, बीच में लंबे चौड़े सुराका थे और अपना हाथ बताते थे। उमर की नजर मिली, सुराका की नजर मिली। उमर ने कहा रास्ता छोड़ दो, सबको मैं देने वाला सुराका आया है जिसको नबी पहनाने वाला है। सबको मैं दूंगा और सुराका को कौन देने वाला? बस रास्ता हटा दिया गया, सुराका आए। सुनना, हजरत सुराका आए। हजरत उमर ने क्या फरमाया? ए सुराका मैं जानता हूं मर्दों के लिए सोना हराम है। हमारे हजरत उमर ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, ए सुराका मैं जानता हूं मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन जिसको नबी पहना है उसको उमर भी नहीं रोक सकता। जिसको नबी पहना है उसको उमर भी नहीं रोक सकता। हजरत उमर ने कहा मदीना वालों देखो, हजरत सुराका के सर पर किसरा का ताज रखा गया, उनके हाथों में सोने का कंगन रखा गया और किसरा के तख्त पर सुराका को बिठाया गया। और हमारे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमला कहा, जब सुराका के सर पर किसरा का ताज था, हाथ में किसरा के कंगन थे और कमर पर किसरा का पट्टा था और तख्त और ताज था, उस वक्त हजरत उमर ने फरमाया ओए राबियुन, क्या फरमाया? ओए राबियुन व अला रासिही ताजु किसरा व अला यदैही सिवारे किसरा। हजरत उमर ने कहा एक देहाती है, एक देहाती मक्का का रहने वाला देहाती अनपढ़ है, लेकिन नबी का दामन पकड़ा तो ईरान के बादशाह का ताज भी इसके सर पर आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक्य के बाद मैं सबको कहता हूँ दीन दुनिया दोनों नबी के कदमों में है। बोलो ना, नबी का कदम वो मुबारक कदम है, एक बार उस कदम को अपना ले, खुदा दीन भी देगा और दुनिया तेरे कदमों में फेंकेगा। मेरे दोस्तों, जो खुदा सुराका जैसे देहाती के सर पर किसरा का ताज, उनके हाथों में किसरा का कंगन, उनकी कमर पे किसरा का पट्टा
और उनके पास किसरा का तख्त मेरे दोस्तों हजरत उमर की। और हजरत उमर तो खुद भी कहते थे, हजरत उमर के बारे में एक बात बता दूं, बता दूं, फिर हिजरत के वाक्य पर फिर आएंगे। और विशाल का वाक्य इंशाल्लाह 21 मार्च। मैं इंसान हूं, कोई जिन्नत नहीं हूं। लेकिन एक बात सुनो, बहुत पते की बात, हिजरत की बात सुना रहा हूं, सुनाओ ना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब हजरत उमर का नाम आया तो एक बात सुना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा मक्के की कोई वादी से गुजर रहे और हजरत उमर रोने लगे। भाई मक्के की वादी से गुजर, हजरत उमर जैसा उमर रोवे? अरे उमर में तो बहुत पावर था भाई। अरे था कि नहीं था पावर? अरे बोलो ना, था कि नहीं पावर? कितना पावर था, इतना पावर था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु में, इतना पावर था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने की गली से गुजरते थे तो लोग कांप जाते थे। वे कांपते थे कि नहीं कांपते थे? और हजरत उमर जब मदीने की गली में दाखिल होते थे, हमारे नबी मुस्कुराते थे और कहते थे, उमर क्यों नहीं मुस्कुराओ, तेरा कदम आता है और इब्लीस का कदम निकल जाता है। और हमारे नबी ने कहा था, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, वैसे हमारे नबी के बाद कोई नबी, लेकिन हमारे नबी फरमाते अगर होता तो मेरे बाद उमर फारूक नबी होता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मक्के की वादी से गुजरे, अमीरुल मोमिनीन ने रोने लगे। अब सब लोग सोचने लगे, इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन, इतना बड़ा बादशाह, ये मक्के की वादी में रोता क्यों? तो बेटे ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला, बेटे ने कहा, अब्बा जान आप अमीरुल मोमिनीन है, आपके पास इतनी बड़ी हुकूमत है, ये मक्के की वादी में खड़े होकर रोते क्यों हो? हजरत उमर ने कहा, इसी वादी में मैं जानवरों को चराने लाया करता था। इसी वादी में मैं मेरे घर के जानवरों को चराता था और कभी कभी कोई जानवर भाग जाता, मेरा बाप खत्ताब मुझको मारता था और मार मार के कहता था, उमर तुझे जानवर चराना भी नहीं आता, लेकिन आज नबी का दामन पकड़ा तो जानवर क्या 22 लाख मुरब्बा हुकूमत पर इंसानों को चला रहा। मैं नबी का दामन बहुत प्यारा। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो नबी का दामन पकड़ता उसको क्या मिले। आज मेरे दोस्तों देखो, मैं बात खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मोहब्बत करोगे तो हाथ ऊपर करो। मैं मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह, मैं सब साथ में कहूं, नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात बता दे मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वाला बन जा, अल्लाह अल्लाह बहुत देता है। कहो अल्लाह। कि मैंने शुरू किया था हजरत बाबा, मैं शुरू किया था ना इसी बात पर, हजरत बाबा, जरा मेरे साथ में मेरे दोस्तों देखो, नींद भी उड़ जाएगी इंशाअल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा अपने घर के बाहर वरांडे में अपने घर के बाहर बैठे थे और जिक्र कर रहे। कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके सदके में हम सबकी मगफिरत फरमाए। अपने घर के बाहर बैठे बैठे जिक्र कर रहे। और क्या जिक्र कर रहे? मेरे साथ में शुरू हो जाओ। क्या जिक्र कर रहे? अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अल्लाह का जिक्र, और जिक्र में बिल्कुल मस्त जिक्र कर रहे। दो फकीर सामने से आए। कौन आ गए? दो फकीर। और दो फकीर ने सामने से आकर कहा, ओ बाबा जिक्र बाद में करना, भूख बहुत लगी है, कुछ दे दो ना, भूख बहुत लगी है कुछ। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तो जिक्र अल्लाह के इश्क में डूबे हुए यूं गर्दन मुबारक उठाई, कहा क्या हुआ? कहा आप जिक्र बाद में करना, भूख बहुत लगी, कुछ खाने का दे दो, रोटी हो तो दे दो, अरे एक एक दिरहम दे दो, अरे जो भी हो कुछ दे दो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जमीन पे बैठ के जिक्र कर रहे। यहाँ से ढेला उठाया, ढेला समझते हो ना, ढेला पत्थर का, मिट्टी का ढेला यूं उठाया, एक ढेला यहाँ से उठाया, एक फकीर को दिया, फिर दूसरे फकीर को दे दिया, दोनों को दे दिया। और फिर वापस शुरू, अल्लाह 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 अल्लाह। तो दोनों फकीर गुस्से हो गए। अरे कोई भी गुस्से हो जावे। कहा नहीं देना, रोटी नहीं देता कोई बात नहीं, दिरहम नहीं देता कोई बात नहीं, ये मिट्टी का ढेला को दिया। अरे कोई अगर कोई भी मेरे पास भी मांगने आवे मिट्टी का ढेला तो क्या बोलेगा? तेरे मुंह पे मारू? अरे बोलेगा कि नहीं? ये मेरी मजाक। वो दो फकीर कहते हैं, हमारी मजाक करते हो फरीदुद्दीन, इतने बड़े अल्लाह के वली और हमारी मजाक करते हो? हमने रोटी मांगी, भूख लगी है, हमने पैसा मांगा, मिट्टी का ढेला। ये कहकर दोनों फकीरों ने मिट्टी का ढेला फटका, जैसे फटका सोने का टुकड़ा, दोनों ढेले सोने का टुकड़ा। अब दोनों लेने के लिए भागे। तो बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, मुझको गाली दी वरना ये पूरी जमीन का टुकड़ा सोने का बना के तुम्हारे हवाले कर देता। मुझे बुरा भला कहा, ले जाओ ये दो टुकड़े ले जाओ, ये पूरी जमीन सोने की बना के देता। क्यों? इसलिए कि फरीदुद्दीन जब अल्लाह अल्लाह बोलता है तो अल्लाह जमीन को उसके हवाले कर देता है। मेरे दोस्तों कैसे जिक्र की बरकत होगी ना, अल्लाह ताला ऐसा जिक्र हम सबको नसीब फरमाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज मैं कसम खाकर कहता, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, दुनिया का ये धोखा, ये हमारी जमातें, ये हमारी टीमें खत्म करो मेरे दोस्तों। एक बन जाओ मोहम्मदी, एवरीवन ऑन वन प्लेटफॉर्म। भाई समझे नहीं समझे?
मैं इसलिए कहता, मेरे दोस्तों मैं इसलिए कहता, माफ करना आपके अहमदाबाद वाले, बड़ौदा वाले, एक भाई, मेरे दोस्तों माफ करना, मैं क्या बताऊं, फोन करेंगे, फोन, मेरा मोबाइल खोलता हूं मैं हैरान परेशान हो जाता। अब एक मरतबा फोन किया, अब मौलाना तू हावड़ा है? मैंने कहा नहीं। तो कहा चंबुड़िया है? मुझे सही है, 2 दिन पहले की बात है। कहा सुन्नी है? मैंने कहा नहीं। तो कहा फिर तू कौन है? मैंने उसको बहुत प्यारा जवाब दिया, काश के ये जवाब सबको समझ में आ जाए, भाई सबको समझ में आ जाए। मैंने उसको जवाब दिया, भाई सुन्नी होता तो इस्लाम का एक हाथ होता, देवबंदी होता तो इस्लाम का एक हाथ होता। मैं चाहता हूं 1 हाथ 2 हाथ नहीं, मोहम्मदी बन जा, दोनों हाथ तुझे नसीब हो जाए। भाई सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? और मेरे दोस्तों मोहम्मदी कौन बनेगा मोहम्मदी? जो नबी से मोहब्बत करेगा। कहो कौन न बनेगा मोहम्मदी जो नबी से? चलो कौन तैयार है आज ईमान से, रबीउल अव्वल का महीना, कह दो हम यकीन के साथ नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, यकीन के साथ नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों एक बात बता के बात खत्म करूंगा, दिल को हिला देने वाली बात है मेरे दोस्तों। आपने एक सहाबी का नाम सुना होगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अरे बोलो सुना नहीं सुना? हजरत अबू बकर क्या मोहब्बत करते थे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या मोहब्बत करते थे। एक मरतबा जब सहाबा किराम जमा हो गए, भाई एक मरतबा जब सहाबा किराम जमा हो गए और एक सवाल आया, कौन नबी से मोहब्बत करता, कौन नबी से मोहब्बत करता, कौन नबी से मोहब्बत करता और कितनी करता और कौन करता? भाई दोनों सवाल है, कौन करता है और कितनी करता है। जब सहाबा किराम के दरमियान में सवाल आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं दिल में सोचा आज ऐसी बात बोलूंगा कि मोहब्बत के मैदान में सबसे आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर फरमाते कि मैंने सोच लिया आज ऐसी बात बोलूंगा कि नबी से मोहब्बत के मैदान में सबसे आगे निकलूंगा। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से पूछा, तू क्या चीज में पसंद करता और कितनी पसंद करता? हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अबू बकर एक ही चीज पसंद करता और वो चीज ये है अन्नज़्रु इला वजहिक। अबू बकर की एक ही तमन्ना है, जब मौका मिले आपके चेहरे अनवर का दीदार हो जावे। एक ही तमन्ना। हजरत अबू बकर ने फरमाया एक ही तमन्ना, आपके चेहरे का दीदार हो जाए। हमारे नबी ने फरमाया दीदार तो होता है, रोजाना तो तू मुझे देखता है, सुबह देखता शाम देखता। हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू छलक गए। फरमाया मेरे नबी दुनिया आपको इन आंखों से देखती है, अबू बकर आपको इन आंखों से देखता है। कहा उसकी क्या दलील? भाई हमें तो मालूम है, तू भी ना। हमारे नबी ने पूछा अबू बकर उसकी क्या दलील? हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे घर वालों को पूछो, मेरे घर वालों को पूछो, मेरे घर में खाना नहीं होता, मेरे घर में कितनी मरतबा ठंडा पानी नहीं होता और मैं घर से निकलता, मेरी बीवी पूछती अबू बकर कहाँ जाते, मैं कहता खाना खाने जाता, मैं कहता पानी पीने जाता, लेकिन अल्लाह की कसम मैं न खाने जाता न पीने जाता, आपके चेहरे को देखता, अल्लाह की कसम भूख भी खत्म हो जाती, प्यास भी खत्म हो जाती है। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछूं, यही हजरत अबू बकर ने कहा मुझे पसंद है आपका चेहरा देखना, अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया? जब हमारे नबी हिजरत में गए, एक गार में गए, गार का नाम है गारे सौर। गार का नाम क्या है? गारे। कितने दिन रहे? 3 दिन 3 रात। कितने दिन रहे? 3 दिन 3 रात। कौन थे गार में? अबू बकर और नबी और अल्लाह ने कहा मेरा अबू बकर तूने सच बोला था, तूने सच कहा था, तूने सच फरमाया था कि मुझे नबी का चेहरा देखना पसंद है। अबू बकर 3 रात 3 दिन मैंने घर में नबी के साथ रखा, जी भर के देख ले, तेरे साथ तीसरा कोई देखने वाला नहीं होगा। देखा नहीं देखा? 3 दिन और 3 रात देखा कि नहीं देखा? और मेरे दोस्तों और मोहब्बत कैसी बताई कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मैं थक गया, घर में हमारे नबी ने क्या फरमाया अबू बकर में? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए और कहा आपका मुबारक सर मेरी गोद में रख दो। हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक सर अबू बकर की गोद में रख दिया और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने खुश है, आज मेरी गोद पर वो नबी है जिससे बढ़कर कोई नबी नहीं हो सकता, वो मुबारक सर है जिससे बढ़कर कोई मुबारक सर। हजरत अबू बकर इतने खुश है, लेकिन हजरत अबू बकर को नहीं मालूम नीचे एक सुराख है और वहां से एक बिच्छू हजरत अबू बकर के पांव में डंक मार रहा। एक रिवायत में बिच्छू, एक रिवायत में सांप, जो भी हो डंक मार रहा। और मेरे दोस्तों एक नहीं 11 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा। कितनी मरतबा? 11 मरतबा हजरत अबू बकर के पांव में बिच्छू ने डंक मारा या सांप ने डंक मारा, लेकिन हजरत अबू बकर ने अपनी गोद को हिलाया नहीं। क्यों? अगर गोद को हिलाऊंगा मेरे नबी की नींद खराब हो जाएगी। वो तो पूरे बदन में
नबी के मुबारक गाल पर। जब नबी के मुबारक गाल पर आंसू का कतरा आया तो हमारे नबी ने आंख खोली, कहा अबू बकर क्या हो गया? कहा अल्लाह के रसूल वो बिच्छू डंग मार रहा और पूरे चेहरे का रंग बदल गया। हमारे नबी ने कहा मुझे बताया नहीं? कहा अबू बकर मर सकता लेकिन आपकी नींद को खराब तो नहीं कर सकता। अबू बकर जान तो दे सकता लेकिन आपकी नींद को तो खराब नहीं। मेरे दोस्तों क्या मोहब्बत होगी मेरे दोस्तों। फरमाया अबू बकर जान दे देगा लेकिन आपकी नींद को खराब नहीं करेगा। बस इतना कहना था, इतना कहना था कि हमारे नबी, भाई नबी की रहमत भी जोश में आ गई। हमारे नबी ने कहा कहां डंग मारा, किस बिच्छू ने डंग मारा, किस सांप ने डंग मारा? बस जैसे हजरत अबू बकर ने बताया हमारे नबी ने अपना मुबारक थूक निकाला और हजरत अबू बकर के पांव पर मल दिया। अबू बकर फरमाते अल्लाह की कसम कभी मेरे पांव में दर्द ही नहीं हुआ। अब मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं मेरे दोस्तों, इसीलिए मैंने ये वाकया बताया। 3 दिन 3 रातें गार में, भाई कितने दिन? और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गार में, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अब सुना बहुत पते की बात है, 3 दिन 3 रात हो गई, अब निकलने का वक्त आया तो हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? ए नबी मुझको प्यास बहुत लगी। सुनना हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया? मेरे नबी मुझको, तो हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर प्यास लगी, एक गार से निकल जा, ओ सामने नहर है वहां जाके पानी पी ले। अबू बकर ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कई मरतबा घाट से निकला और चारों तरफ देखा कहीं कोई नहर वहर नहीं है, कहीं नहर नहीं, कोई पानी का नामो निशान नहीं, वो तो हमको निकल के आगे जाना पड़ेगा तो कहीं पानी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम अबू बकर निकल तो सही, घाट के बाहर एक नहर है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कहा जा तो सही। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला बाहर निकले, 3 कदम आगे बढ़े, नहर का पानी बह रहा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते इतना प्यासा था मैंने पीना शुरू किया, पीता गया पीता गया पीता गया पीता गया और इतना खुश हो गया और खुश होकर मैं वापस आया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या पानी था, इतना प्यारा पानी था, इतना प्यारा पानी था। हमारे नबी ने पूछा कई फवज्जत था या अबू बकर, अबू बकर पानी पिया लगा कैसा? हज़रत अबू बकर ने फरमाया अल्लाह के रसूल क्या बताओ, अहला मिनल असल अबयज़ मिनल लबन, अरे वो पानी ऐसा था दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर मालूम है पानी कहाँ का है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया वो तो नहर है, आप भी चलो बाहर नहर बह रही और बहुत प्यारा पानी और मैंने बहुत पिया, मैंने बहुत पिया। हमारे नबी ने कहा जा देख नहर है कि नहीं है। हज़रत अबू बकर बाहर आए तो कोई नहर वहर कुछ भी नहीं है। फिर आगे कहा अल्लाह के रसूल चली गई, अल्लाह के रसूल नहीं है कुछ भी नहर नहीं, लेकिन मैं पानी पीकर आया और अल्लाह की कसम पिया। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर तूने मुझसे मोहब्बत की, अल्लाह ने तुझे एक बेहतरीन इनाम दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क्या इनाम? सुनना हमारे नबी ने फरमाया अभी अभी जिब्राइल ने मुझे कहा अबू बकर को बाहर पानी पीने जाने दो, इसलिए कि अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस से पानी नहर में उतारा है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस की नहर का कनेक्शन गार के बाहर वाले गड्ढे में कनेक्शन जोड़ा है, वहां जन्नतुल फिरदौस का पानी है, अबू बकर को पिला दो इसलिए कि इसने आपसे सच्ची मोहब्बत की है। सुनना हज़रत अबू बकर तो रो पड़े, कहा अच्छा आसमान पर मेरा भी नाम लिया जाता है। हज़रत अबू बकर ने कहा अच्छा आसमान पर मेरा भी नाम लिया जाता और मेरे लिए भी नहर उतारी जाती। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर तू नहीं, क़यामत तक जो भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा अल्लाह की कसम अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस का पानी पिलाएगा। चलो मेरे दोस्तों अब खत्म करना, कौन कौन मोहब्बत करने वाला और जन्नतुल फिरदौस का पानी पीने वाला? भाई पिएंगे सब इंशाअल्लाह, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, मोहम्मदी बनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो और फिर एक मर्तबा बड़े प्यार और मोहब्बत से कहो हम इधर भी ना देखे उधर भी ना देखे, हम तो देखे तो नबी का दामन देखे। इसलिए कि ये दामन मिला तो सब ठीक, ये नहीं मिला तो वो हजरत काब इब्ने मालिक से हमारे नबी नाराज हो गए थे। काब इब्ने मालिक से हमारे नबी नाराज हो गए थे, बात नहीं करते थे। भाई हमारे नबी बात, और अल्लाह ने कहा था काब से बात नहीं करना, काब से बात। तो हजरत काब इब्ने मालिक क्या फरमाते, देखो मोहब्बत किसको कहते हैं। हजरत काब इब्ने मालिक फरमाते मैं जब नमाज पढ़ता था तो यूं आंखों से दिखता था मेरे नबी क्या कर रहे हैं। कहते तो कहते मेरे नबी बिल्कुल मुझे देखते, लेकिन मैं जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो मेरे नबी दूसरी तरफ देखने लग जाते थे। यानी मोहब्बत तो थी ना, हमारे नबी को भी मोहब्बत थी ना। काब इब्ने मालिक को किसी ने कहा अरे नबी तो राजी
होने ही वाले थे, उसमें तुझे इतने घबराने की और फिक्र करने की क्या जरूरत? फरमाया हाँ वो तो मुझे भी मालूम था नबी राजी हो जाएंगे, लेकिन मैं घबरा इसलिए रहा था कि अगर मर जाऊंगा तो नबी के जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं होगी। अगर मेरी मौत आ गई तो नबी के जनाजे की नमाज भी नसीब। मेरे दोस्तों, हजरत मौलाना हकीम अख्तर साहब ने कहा, काब इब्ने मालिक क्या कहते थे? निगाह अकरीबा बदली, मिजाज दोस्ता बदला। भाई जब हमारे नबी नाराज हो गए तो पूरा सारे लोग ही नाराज हो गए। क्या फरमाते? निगाह अकरीबा बदली, मिजाज दोस्ता बदला, एक नजर उनकी क्या बदली के कुल जहां बदला। भाई सही है कि नहीं? निगाह अकरीबा बदली, मिजाज दोस्ता बदला, एक नजर मोहम्मद की क्या बदली के कुल जहां बदला। अगर मोहम्मद की नजर हमसे बदल जाए पूरी दुनिया बेकार है, और एक नजर उनकी आ जाए तो जन्नत भी तेरे कदमों पर है। इसलिए कहा ना, इसीलिए हम तो कहते हैं कि भाई जन्नत से भी इसीलिए मोहब्बत है कि वही हमारे नबी का ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में फिर एक दो बातें कहूंगा, लेकिन वो दरमियान में ये बात भी बता दूं मौलाना, इसलिए वो किसी तरह पठान तो वसूल करने ही वाला है, इसलिए मैं अभी से बता दूं। इन्होंने जो बातें कही, भाई बता दूं मौलाना हबीब साहब, ना तो बोलता ही नहीं भाई। 21 तारीख को ना हो चलेगा? आप तो मुझे हबीब ने कहा यही घर भी ले ले तू। लेकिन एक बात बताओ मेरे दोस्तों, कुरान बहुत प्यारा कलाम है भाई। हम अनवर भाई बहुत तगड़ा आदमी है, वो कहता कि इसके बैटरी वाटर पिलाओ तो वापस से मशीन गर्म होगा। मैं आपको कुरान की कुछ आयतें सुनाऊंगा, लेकिन वो हदीस सुना दूं जो हजरत मौलाना हबीब साहब ने कहा, और अल्लाह का फजल है समझ में आ गई बात। भाई सब समझोगे इंशाअल्लाह, और कुरान प्यार मोहब्बत से सुनोगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए देखो मेरे दोस्तों, 3 काम में से कोई एक काम करूंगा। अभी भी आपसे कहता हूं, या तो बोलो तो कुरान पढ़ो, या सलातो सलाम पढ़ो, या अजान दो। अच्छा तीनों, 21 कैंसल। ये तो भाई एक हाथ से ताली बजाते, 2 हाथ से यहाँ तालियां नहीं बजती। चलो मैं आपको सबसे पहले वो बात बताऊं, बहुत प्यारी हदीस है। एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनना सारे सहाबा जमा है। ओहो मेरे दोस्तों, मदीने पाक का आखिरी जमाना, सहाबा गचागच जमा है, और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा जन्नत में जाना चाहते हो? भाई जन्नत में जाना चाहते हो? बताओ सहाबा ने क्या फरमाया? भाई सहाबा ने क्या फरमाया? बला या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं जाना चाहते? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सारे मेरे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे और सब जन्नत में होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेंगे, ए जन्नतियों, क्या तुम अच्छी आवाज सुनना चाहते हो? अल्लाह ऐलान करेंगे, क्या तुम अच्छी आवाज सुनना चाहते हो? तो जन्नती कहेंगे, हाँ अल्लाह सुना दे, इसलिए कि जन्नत में जो आवाज होगी वैसी आवाज तो कोई नहीं होगी। अल्लाह ताला तमाम हूरों को कहेंगे, ए हूरो, तुम अपनी अपनी आवाज में गाना शुरू करो। अब हूरे अपनी अपनी आवाज में जब गाना शुरू करेगी, हर जन्नती एक अजीब और गरीब हाल में होगा और कहेगा, अल्लाह तेरी कसम, दुनिया में बहुत रहा लेकिन ऐसी आवाज तो कभी नहीं सुना था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदो, ये तो हूरों की आवाज थी, क्या मैं तुमको इससे अच्छी आवाज न सुनाऊं जो 70 गुना ज्यादा इससे अच्छी आवाज है? तो सारे जन्नती कहेंगे, अल्लाह क्यों नहीं, बला या रब्बना, अल्लाह क्यों नहीं सुना दे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, दाऊद, किसको ऐलान होगा? हजरत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, हजरत दाऊद आप दरमियान में आ जाओ। हजरत दाऊद तमाम जन्नतियों के बीच में आकर बैठेंगे। अल्लाह फरमाएंगे, जबूर की तिलावत करो। हजरत दाऊद जबूर पढ़ना शुरू करेंगे और सारे जन्नती वज्र में आएंगे। कहो इंशाअल्लाह। हजरत दाऊद पढ़ते जाएंगे, सारे जन्नती वज्र में होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, मेरी बुजुर्गी की कसम, मेरे जलाल की कसम, क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी आवाज न बताऊं? क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी आवाज? तो सारे जन्नती कहेंगे, इससे भी अच्छी कोई आवाज होगी? हजरत दाऊद ने पढ़ा तो हम तो बिल्कुल मस्त हो गए, इससे अच्छी कोई आवाज होगी? अल्लाह फरमाएंगे, मेरी इज्जत की कसम, मैं वो आवाज सुनाऊंगा जो हजरत दाऊद से 700 गुना ज्यादा अच्छी होगी। 700 गुना ज्यादा अच्छी होगी वो आवाज मैं सुनाऊंगा। तो सारे जन्नती कहेंगे, अल्लाह तब तो बड़ा अजीब होगा, वो किसकी आवाज होगी? अल्लाह फरमाएंगे, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद दरमियान में आएंगे। कहो सल्लल्लाहु
اللہ فرمائیں گے میرے آخری نبی محمد درمیان میں آئیں گے اور جو میں سورت کہوں گا وہ سورت پڑھتے جائیں گے اور وہ پڑھتے جائیں گے. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم تم بھی جھومتے جاؤ گے اور میرا عرش بھی جھومتا جائے گا. نعرہ تکبیر محمد کا نام. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے اور دمکتے چہرے کے ساتھ, ارے اللہ اکبر, جنتی چہرہ, ویسے ہی چمکتا دمکتا چہرہ اور پھر جنت میں کیسا چمکتا دمکتا ہوگا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے اور دمکتے چہرے کے ساتھ تمام کے درمیان میں جلوہ افروز ہوں گے اور پوچھیں گے اللہ تیرا تو پورا قرآن ہی پیارا ہے لیکن تو بتا دے آج میں کیا پڑھوں. اللہ فرمائیں گے اے میرا محبوب میں چاہتا ہوں آج تیری زبان سے تیری تعریف کو سن لو, اس لیے کہ تیری زبان نے ہمیشہ میری تعریف کی ہے. آج میں تیری زبان سے تیری تعریف سنوں گا. پڑھ لے طٰہٰ سورہ اور پڑھ لے سورہ یاسین. اب یہ حدیث چل رہی ہے, میں بتا دوں نا آپ کو, اب اللہ کرے گا یہ کچھ آیتیں ہمارے دل میں جم جاویں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ سورہ طٰہٰ, اللہ تعالیٰ اسے محبت نصیب فرمائے. اور ہمارے نبی نے کون سی سورت پڑھی آپ کو بھی یاد ہوگی, یاد ہوگی نا. پیار محبت کے ساتھ میرے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ لو پھر ہم حدیث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں, کہو اللہ سب کو نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو میرے دوستوں کیسی پیاری جنت ہوگی. ہمارے نبی جلوہ افروز ہوں گے اور ہمارے نبی کتنی مبارک آواز سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے. میرے دوستوں ہم تو بالکل ویسا نہیں کر سکتے, وہ نبی کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہوگی. ہمارے نبی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گے, ہمارے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے. جب دونوں کی تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے تو سارے جنتی کہیں گے میرے نبی اور سنا دے, میرے نبی اور سنا دے. ہمارے نبی کہیں گے میں نے سنایا, اب تو اللہ ہم کو سنانے والا ہے. پہلے ہم کو حوروں نے سنایا, ہم وجد میں آ گئے. اس کے بعد حضرت داؤد نے سنایا, ہم مست ہو گئے. اور جب میں نے سنایا خدا کا عرش جھوما, اب خود خدا سنائے گا. ہمارے نبی کہیں گے اللہ اللہ آج ہم تجھ سے سننا چاہتے, تیرا کلام تو نے غم پر اتارا, میں نے پڑھا, جبرائیل نے پڑھا اور میری امت نے پڑھا, بچوں نے پڑھا. اے اللہ آج تو ہم تجھ سے سننا چاہتے ہیں. میرے دوستوں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت شروع کریں گے. بتاؤ میرے دوستوں کیسی تلاوت ہوگی, کوئی بتا سکتا؟ اور لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آیت پڑھیں گے 7ویں پارے سورۃ الانعام. 3 آیتیں 7واں پارہ سورۃ پڑھ کر بتا دوں, میں پڑھ کر میں نالائق بتا رہا ہوں لیکن یہ تو کون پڑھے گا؟ سب بولو بھائی, سب بولو ساتھ میں, کون پڑھے گا؟ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. هو الذی
أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی 3 آیتوں کو پڑھیں گے, سارے بندے جھوم رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو آج میں نے تم کو قرآن سنایا, اسی قرآن کے صدقے میں تم سب کو جنت عطا کروں گا. اور اللہ کیا فرمائیں گے, جاؤ اب تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں رہوں گا. میں نے یہ سب پڑھا, مولانا حبیب صاحب کے حکم سے پڑھا, لیکن میں ایک دل سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ہم سب کو قیامت میں نبی کو منہ دکھانا ہے, دکھانا نہیں دکھانا. ایک آخری بات بتا کے بات ختم. میرے نبی کا وصال ہو گیا. حضرت انس فرماتے سارے صحابہ کے بیچ میں آیا, چادر مبارک کو ہٹایا, میں نے پیشانی کو چوما اور میں نے کہا نا میرے نبی آرام فرما رہے ہیں, میرے نبی آرام فرما رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سوتے تھے تو چہرے سے ایسا ہی نور ٹپکا کرتا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کوئی یہ کہنا نہیں میرے نبی کا وصال ہو گیا, اس لیے کہ میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی. حضرت انس فرماتے 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے مجھ کو کبھی ڈانٹا نہیں, میرے نبی کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے, میرے نبی مجھے میرا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے, اور میں نے نبی کا اٹھنا بھی دیکھا, بیٹھنا بھی دیکھا, سونا بھی دیکھا. میرے نبی کا وصال نہیں ہوا. یہ کہ اگر حضرت انس باہر گئے, لیکن میرے دوستو کیا ہوا حضرت انس مدینے کی گلی میں نکلے, کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا وصال نہیں ہوا, میرے نبی کی وفات نہیں ہوئی. لیکن ہر گھر سے دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے. حضرت انس نے کہا یہ ماں دودھ کیوں نہیں پلاتی, یہ مدینے کی ماؤں کو کیا ہو گیا, دودھ نہیں پلاتی. ساری ماؤں نے کہا جب سے تیرے نبی کے انتقال کی خبر آئی ہے بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے, بچوں نے دودھ پینا بھی. میرے دوستو آپ سے میں پوچھتا ہوں, حضرت انس وہی گلی میں بیٹھ گئے, کیا کیا, گلی میں بیٹھے اور اپنے آپ کو سرکاتے مدینہ میں مسجد نبوی میں آئے اور ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس گئے اور کیا کہا, میرے نبی اگر آپ کو جانا تھا تو مجھے کہا کیوں نہیں, میں بھی آپ کے ساتھ آ جاتا. 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے, آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے. میرے دوستو حضرت انس نے جو جملے کہے, لیکن ایک دل کو ہلا دینے والی بات, میرے پیاروں دل کو ہلا دینے والی بات ہے. جس وقت حضرت ابو بکر, میں نے حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کو ابھی بتایا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے, میرے دوستو کیا ہوا وہ تو ہم انشاءاللہ 21 مارچ کو سنیں گے, لیکن صرف ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے اور جو کچھ ہونا تھا ہوا, اس کے بعد میں حضرت ابو بکر نے ایک سوال پوچھا, این بلال, بلال کہاں ہے, قد حان وقت الظہر, ظہر کا وقت ہو گیا, بلال کہاں ہے. میں کیا سوال پوچھا, کون, ارے بولو نا کیا سوال پوچھا, کون. میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت ابو بکر ڈھونڈ رہے, پوری مسجد گچاگچ بھری ہوئی, صحابہ رو رہے, لیکن بلال نظر نہیں آتے. تو ہمارے حضرت ابو بکر نے پوچھا ہے نا بلال کہاں ہے, ظہر کا وقت, اذان دینا ہے, بلال کہاں ہے. جب یہ سوال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا, لوگوں نے اشارے سے کہا یہاں نہیں ہے, مسجد کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں مبارک جنازہ رکھا ہوا, صحابہ بیٹھے, وہ مسجد کے پیچھے دیوار کے پیچھے بیٹھے. تو کہا وہ دیوار کے پیچھے کیوں چلے گئے. کسی نے کہا ابو بکر وہ تو یہاں بیٹھ کے نبی کا جنازہ دیکھ بھی نہیں سکتے. میرے دوستو کیا محبت ہوگی, آپ اندازہ لگاؤ. اور حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم میں گیا اور دیوار کے پیچھے میں گیا. میرے دوستو حدیث پاک میں جو کیفیت لکھی ہے دل ہلا دیتا. حضرت ابو بکر فرماتے جب میں باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر کیے ہوئے, گردن کو جھکائے ہوئے حضرت بلال اس طریقے سے بیٹھے اور جیسا کوئی بچہ بلبلاتا ویسے ہچکیاں لے کے رو رہے. حضرت ابو بکر فرماتے میں گیا اور میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اے بلال. حضرت ابو بکر فرماتے کہ بلال نے یوں چہرہ دیکھا, کھڑے ہو گئے. حضرت انس کہتے میں نے دنیا میں رونا بہت دیکھا لیکن ابو بکر اور بلال جیسا رونا نہیں دیکھا. کہتے بلال ابو بکر کے گلے لگے اور ابو بکر بلال کے گلے لگے. حضرت انس کہتے میں وہ گھڑی بھول نہیں سکتا, دونوں کیسے ہچکچا کے اور بلا کے روتے تھے اور بلال زور سے ایک ہی بات کہتے تھے, ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا تھا. حضرت ابو بکر کو کہتے, بلال کہتے مکہ میں مجھے لوگوں نے بہت مارا تھا اور مدینے میں میں نے میرے پیٹ پر پتھر بہت باندھے لیکن سارا دکھ ہلکا تھا. لیکن ابو بکر آج تو میں یتیم ہو گیا. ابو بکر آج میں یتیم ہو گیا. وہ مکے کا مار مجھے اچھا لگا تھا, وہ مدینے میں پیٹ پر باندھنا اچھا لگا تھا, لیکن اب تو نبی چلے گئے.